Good morning, class. Students, I'm gonna ask you some questions. If you know the answers, just write down your answers in the comment box, or you can simply unmute yourself and answer the questions. Okay? Sure. So the question is, what do you see in these two pictures? Answer. You can write the answer in the chat box. What do you see in these pictures? Very good, Alka. There is a packet of mad angles. ठीक है? And उसके अंदर ये जो बना हुआ है, ये भी उसके अंदर ये फील्ड है. ठीक है? So this is the mad angle. Very good. The next question is, what is the shape of the second picture? ये जो सेकंड पिक्चर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, ये इसका शेप क्या है? वेरी गुड अलका. इट्स अ ट्रायंगल शेप्ड, है ना? वेरी गुड. So now answer the next question. How many types of the triangles are there on the basis of angles? How many types of the triangles are there on the basis of angles? Very good, Alka. There are three types of the angles. Three types of the triangles on the basis of angles. Okay. Now answer the next question. What do we call the branch of mathematics which deals with triangles? What do we call the branch of mathematics which deals with triangle? Very good, Pradeep. Very good. So the branch of mathematics which deals with triangle is known as the trigonometry. So we will discuss today the trigonometry. Okay. So now answer me the next question. That is, here it is the topic, or that is trigonometry. Okay. Answer the next question. What do you see in this picture? यहाँ पे U miss हो गया है. ठीक है. What do you see in the picture? There it is. आप ये क्या देखें? बताइए. Sir, can I answer? Very good, Pradeep. Very good. This is a line, है ना? Or you can say this is a arrow. ठीक है? Answer the next question. What happens if we join two lines with a common point? What will gonna happen if we join two lines with a common point? Very good, Shubham. Very good, Pradeep. So if we join two lines with a common point, it will form a angle, है ना? ये देखो, एक arrow है ये, या फिर इसको हम it's a part of a line. So अगर हम इसको किसी एक particular common point से join करेंगे तो ये क्या form करेगा? एक angle form करेगा. Clear है? Okay, चल next. So let's define the trigonometry. What is trigonometry? A branch of mathematics that deals with the triangles, mostly with the right angle triangles. है ना? That means the right triangles. So a branch of mathematics that deals with the triangles, mostly with the right triangles, used in finding the relationship between sides and angles. मतलब particular कोई right angle triangle है, ठीक है? तो उसके साइड्स, मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं, और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उससे जो भी डील करती है मैथमेटिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? दैट इज द टर्म द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री को हम तीन पार्ट में बेसिकली इस टर्म को डिवाइड कर सकते हैं: ट्राई, गोनो एंड मेट्री. ठीक है? सो ट्राई मींस थ्री, ठीक? एंड देयर इज अ ग्रीक वर्ड गोनिया.
जिसको यहाँ पे गोनो लिखा गया है, सो इट वाज द ग्रीक वर्ड गोनिया दैट रिफर्ड एज द एंगल. ठीक है, सो गोनो दैट इज गोनिया मींस एंगल, ट्राई मींस ट्री, एंड द मेट्री derived फ्रॉम द ग्रीक टर्म मेटेरिन या मेट्रीन. ठीक है, सो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू मेजर. तो मतलब ये कि थ्री एंगल्स का जो मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ द साइड्स, दैट इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, क्लियर है? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट, द डेफिनेशंस. लेट अस सी कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स. जैसा कि मैंने भी पिछली डेफिनेशन में भी बताया है ना. सो यहां पर मैंने तीन, अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली तीन साइड्स होती हैं, हर एक ट्रायंगल में होंगी, बट इसमें स्पेशल नेम दे दिया जाता है. जो राइट एंगल के ठीक सामने वाली ये आर्म होती है, जो साइड है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जो गिवन एंगल है, इस गिवन एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है, दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट, और वी कॉमनली नोन एज परपेंडिकुलर, है ना. एंड जो ये साइड है, इट इज नोन एज द बेस. बेस. ठीक है, और ये रिमेनिंग साइड है, या यूं कह सकते हैं हम कि द साइड अलोंग विद द गिवन एंगल एंड विद द राइट एंगल इज नोन एज द बेस और द एडजेसेंट. ठीक, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो देयर आर बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, इसमें से नंबर 1 है साइन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, है ना. एंड नंबर 2 इज कोसाइन फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हम कॉस. टेंजेंट फंक्शन, नंबर 3 इज टेंजेंट फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं tan. क्लियर है? एंड द फोर्थ वन इज कोटेंजेंट फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं cot. क्लियर? देन आफ्टर दैट देयर इज अ secant फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं sec. एंड इन द लास्ट द सिक्स्थ वन इज कोसिकेंट फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं cosec. क्लियर है? सो दीज आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. ठीक है, क्लियर है? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सो द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल. क्या कह रहे हैं ये? हाइपोटेन्यूज जो है वो किसी राइट ट्राइंगल की वो साइड है जो कि ठीक अपोजिट होती है किसके? राइट एंगल के. सो राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड यही वाली तो हुई. सो इट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल. ये रिमेनिंग दो साइड से, परपेंडिकुलर या बेस से, सबसे बड़ी साइड होती है. ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट साइड. क्लियर? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट. ये नंगा क्यों घूम रहा है? So now what is perpendicular? The opposite side to the given angle is known as the perpendicular. अब इस साइड के इस एंगल के अपोजिट में ये साइड तो होने से रही है ना. सो इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली. सो दिस साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर. ठीक है, ये क्या कहला रही है? परपेंडिकुलर कहला रही है. ठीक है, क्लियर है? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ आंसर मी द क्वेश्चंस. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? What do you see in this picture? Sir, this is a book. Very good, Pradeep. It's a book. ठीक है? So now, answer me the next question. How many shelves are there in this almirah? I have shown you an almirah. अब आप बताइए इस almirah में total कितनी shelves हैं? Sir, Sir, 5 there are shelves. Sorry, how many shelves are there in this almirah? बताइए. Sir, there are Almirah, 5 very good, Pradeep. shelves. In this almirah, there are 5 shelves. ठीक है, number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. ठीक है, so there are 5 almirah. ठीक, अब यहां पर जो बुक्स रखी हुई हैं, and suppose that we are standing here,
सो इनको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लुक अपवर्ड डायरेक्शन, है ना? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, that is angle of elevation. So let us see what is angle of elevation. The angle of elevation of an object, the angle of elevation of an object as seen in the upward direction by an observer. मतलब ये कि जो angle of elevation है वो क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में देखने पर पर्टिकुलरली जो एंगल बनता है इन बिटवीन किसके? हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लाइन ऑफ साइट के, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस आई के ठीक सामने, और ये जो है दैट इज द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे सब पर्टिकुलरली सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया। सो हॉरिजॉन्टल सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। So now what is angle of depression? The angle of depression of an object as seen in the downward direction. है ना? ये क्या है? Downward direction में by an observer is the angle between, downward direction में देखा जाएगा तो पता है, but कैसे? When an observer is, it is the angle between the horizontal line from the object to the observer side. देखो, यानी the line of sight, ठीक है? ये मेरी horizontal line हो गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? जब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ से जब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स में क्या क्या इन्वॉल्वेशन होगा? लाइन ऑफ साइट होगी, पर्टिकुलर एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम लोग बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस की बात करेंगे, एंड एक कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन फंक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइन फंक्शन। व्हाट इज साइन फंक्शन? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, अभी मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको डिस्कस किया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, सो साइन फंक्शन क्या होता है? द साइन फंक्शन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। मतलब ये कि जो साइन फंक्शन है वो किसी भी ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, सपोज दैट अगर ये एंगल गिवन है, ठीक है, सपोज दैट दिस एंगल इज ए, ठीक है, एंड ये इसका परपेंडिकुलर है। सो साइन फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है? इट इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, है ना? सो जब साइन फंक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस रेशियो विल डिफाइन एज अ साइन फंक्शन। क्लियर है? ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, कोसाइन फंक्शन। नाउ व्हाट इज कोसाइन फंक्शन? सी, कोसाइन फंक्शन यानी कॉस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज। क्या बोला जा रहा है? कोसाइन फंक्शन क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ द बेस टू द हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में, पर्टिकुलर इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर ये एंगल मुझे गिवन है, सपोज दैट दिस एंगल इज ए, एंड और अगर ये में अब ये एंगल गिवन है तो ये तो मेरा बेस हो जाना है ना? इट इज बेस। सो इस बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा दैट विल डिफाइन द कोसाइन फंक्शन। That means the base upon hypotenuse will give you the value of cosine function. Clear है? Okay. चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, tangent function. Similarly, as we have previously seen, the sine function and cosine function, in the same way there is a tangent function. ठीक है? So tangent function is defined as the ratio of the perpendicular to the base. It is perpendicular and it is base. अगर ये एंगल मेरा पर्टिकुलर कोई a given है, ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टेंजेंट फंक्शन, दैट इज tan a. क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, I have taken an example. Let's see.
there is a right angle triangle in which the hypotenuse is C, the perpendicular is A, and the base is small b. ठीक है? So sin A is gonna be what? Perpendicular upon base. Is it? नहीं, it is gonna be perpendicular upon hypotenuse, है ना? So sin A is equals to, इस एंगल से हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो sin A is equals to perpendicular. Perpendicular कितना है? A upon hypotenuse यानी C. So sin A is gonna be A upon C. ठीक है? So now the cosine is equals to क्या होता है? Base upon hypotenuse होता है ना? Base upon hypotenuse. So base is B and hypotenuse is C. So the value of cosine function, that is cos A, is equals to B upon C. In the same way, tan A is equals to A upon B because it is the perpendicular upon base, and here it is the perpendicular, that is A, and the base is B. Clear है? चलो next. In the same way, the secant, cosecant and cot. ठीक है? अब होता क्या है sec में? It is the opposite of the cos function. That means the reciprocal of cos function. मतलब ये hypotenuse upon base. So there is a value C upon B. Cosine function, it is the cosecant function. It is the opposite of sine function. ठीक है? So its value is gonna be hypotenuse upon perpendicular. So the value will be C upon it. ठीक है? And the cotangent function, that is cot, that is denoted as the base upon perpendicular. It is the reciprocal of tan. ठीक है? So base upon perpendicular, base हमारा B है and जो हमारा perpendicular है, that is A. So the value will be B upon A. Clear है? चलो. Moving to the next. There is a table. आपको दिख रही होगी, है ना? इस टेबल में मैंने क्या दिखाया आपको कि इस टेबल में सबसे ऊपर है एंगल्स इन डिग्रीज. सी, यहाँ पे मैंने ये एंगल्स आपको दिखा रखे हैं सारे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. क्लियर है? एंड उसके बाद क्या दिखाया है? उसके बाद मैंने नीचे दिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. उनकी डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. तो वैल्यूज क्या क्या होती हैं? लेट्स सी. साइन 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है. साइन 30 डिग्री पर 1/2. साइन 45 डिग्री इट इज 1/√2. ठीक है? इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो √2 से √2 आप जब मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज गोना बी, दिस इज 2 and 2, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा 1/√2. यू कैन राइट √2/2 और 1/√2. ठीक है? एंड इन द सेम वे साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. cos 0 degree is 1, cos 30 degree is √3/2, cos 45 degree as well as 1/√2, and cos 60 degree is equals to 1/2, and the cos 90 degree is 0. ठीक है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 पे √3/3, tan 45 पे 1 होती है, tan 60 पे √3 होती है, and tan 90 पे it is not defined, that means the infinite value. ठीक है? कोसेक पे 0 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करता है. कोसेक 30 डिग्री पे ये वैल्यू इसकी 2 हो जाती है. ठीक है? बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दैट्स व्हाई 1/2 का अपोजिट रेसिप्रोकल 2. कोसेक 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू √2 होती है, एंड कोसेक 60 पे इसकी वैल्यू 2√3/3, दैट इज 2/√3. ठीक है? और cosec 90 1 हो जाता है. इन द सेम वे sec 0 1 होता है, sec 30 2√3/3, that is 2/√3, and sec 45 that is equals to only √2, sec 60 that is 2, and sec 90 degree that is infinite or not defined. Cot is the reciprocal of tan, so cot 0 degree it is not defined, cot 30 it is √3, cot 45 that is 1, cot 60 √3/3 or 1/√3, and cot 90 degree it will give you the value as 0. Clear है? So now next, moving to the next, there is example. ठीक है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमारा 6 सेंटीमीटर. हमसे क्या बोल रहा है? QPR एंड PRQ फाइंड करना है. ठीक है? सो P की एंगल P की फॉर्म बात कर रहे हैं. सो परपेंडिकुलर दिया है और क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पे साइन फंक्शन यूज करेंगे हम. ठीक है? साइन फंक्शन यूज करेंगे. तो साइन P इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, यानी 3/6। जब ये कैंसिल आउट होगा इट विल गिव यू द वैल्यू 1/2। एंड साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है? दैट इज साइन व्हाट, 30 डिग्री, है ना। सो द एंगल P इज गोना बी 30 डिग्री, ठीक है। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द PRQ, दैट मींस एंगल R की बात कर रहा है यहाँ पे। इस एंगल R को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे cos R, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू, अब cos के लिए, सॉरी, फॉर द एंगल P इट इज द बेस एक्चुअली। तो यहां पर हमें cos P अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज गोना बी cos P, ठीक है। सो इट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सो नाउ इट इज गोना बी cos 60 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 60 आना है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज गोना बी साइन R, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर 3/6 आएगा, दैट इज गोना बी एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, trigonometric identities. So there are three trigonometric identities. Number one, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ठीक है. So these are the three trigonometrical identities. चल, applications of trigonometry in real life. Let's see. In ancient times, it was used for as astronomy in finding distance of stars. नंबर 2, फाइंडिंग रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब इसका यूज जो है अर्थ की रेडियस को भी फाइंड करने के लिए किया जाता है। फाइंडिंग हाइट ऑफ द हिल एंड बिल्डिंग एंड ट्रीज, हिल्स, बिल्डिंग या ट्रीज की हाइट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। नेविगेशन सिस्टम में भी इसका यूज होता है, एज एयरप्लेन और शिप्स और एक्सेट्रा। एंड डिफेंस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस. इफ यू नो द आंसर, देयर answer in the chat box or you can unmute yourself. Number 1, what is the definition of trigonometry? Very good, Shubham. So as branch of mathematics that deals with the triangles, mostly with the right angle, used in the finding relationship between sides and angle, is known as trigonometry. Okay, so now what is sine function? Very good, Alka. Very good. So the sine function is defined as the ratio of perpendicular to the hypotenuse. मतलब कि sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. Clear है? So now tell me one application of the sine function. Very good. It is used in to find the height of the hills, buildings and trees. Clear है? So now, okay. So I'm going to give you some homework and you have to write down that homework. Okay. So there it is. Write the value of sine 30 and cos 30, cos 60 degree. And the number 2 is what is the angle of elevation and angle of depression. Okay. Note हो गया? Okay class. Thank you class.